Hello students, welcome in our geography class. Today we are going to start a new chapter, distribution of oceans and continents. So in this chapter we are going to discuss about the distribution system of oceans and continents. In my earlier chapters, I told you that in the earlier times, the entire landmass is having the similar areas, and this entire landmass is called Pangaea, and the water which is surrounded by the Pangaea, that is called Panthalassa. Who said that? This is said by Sir Alfred Wegener. Sir Alfred Wegener proposed this concept in his theory, the continental drift theory. Let us examine the continental drift theory. But let me explain some of the basic concepts related to the land areas. So according to the previous study of several chapters, you have studied that the interior of the earth says our entire land, our entire earth is having two broad classification, and these two broad classification is named continents and oceans, right? So our 29% of surface of the earth is having the continental area, and the remaining 71% is under the oceanic water. But let me tell you one thing, that the today's landmass distribution is just different from the earlier time. In the ancient time, this landmass is joined together, and later on, due to some exogenic and endogenic forces, this landmass splitted into several parts. So, it is now a well accepted fact that oceans and continents will not continue to enjoy their present position in times to come. If this is so, the question arises, what were their position? Why and how they changed their position? And even if it is true that the continents and oceans have changed and are changing their position, so you may wonder as to how scientists know this. How have they determined their earlier position? Right? अगर हम इन सब बातों को कोरिलेट करें, अगर हम ये कहें कि हमारा जैसा अभी का लैंड एरिया है वैसा पहले नहीं था, जैसा हमारा आज अर्थ हमें नजर आता है वो वैसा पहले नहीं था, पहले ये डिफरेंशिएटिव था, तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे। भाई ये चेंज कैसे आए, इनका पोजीशन कैसे बदल गया, ये सारे लैंडमास एक साथ ज्वाइंट कैसे थे, और कैसे पता लगाया हमने, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो उस समय थे ही नहीं। But some of the scholars, according to their researches, they determined that and they give the explanation regarding this kind of changes. तो ये सारी चीजें जो हमें पता चलती हैं वो उन स्कॉलर्स के रिसर्च का नतीजा है जो ऐसे ही बातों पर रिसर्च करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हैं, जिन्हें जानना है कि ये अर्थ जो है पहले कैसी थी और अभी इसमें कुछ चेंजेस आए हैं या पहले जैसी है। So, if you will find the answers to some of these questions and related questions, let us examine these entire thing with several theories. अगर आप भी जानना चाहते हैं तो चलिए आइए एक थ्योरी हम लोग यहाँ कंसिडर करते हैं, और इस थ्योरी का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ऑब्जर्व द शेप ऑफ कोस्टलाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन। अगर आप लोग बहुत ही बारीकी से कोस्टलाइन को ऑब्जर्व करेंगे, कौन से कोस्टलाइन को, अटलांटिक ओशियन के, तो आप बिल्कुल सरप्राइज होंगे इसके सिमेट्रिक ऑर्डर को देख करके। आइए दिखाते हैं। सी, इफ यू एग्जामिन द कोस्टलाइन ऑफ दिस पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन विद दिस पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन, व्हाट यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप कि ये वाला हिस्सा जो है ये इसमें ज्वाइंट हो सकता है, राइट? ब्राजील वाला हिस्सा इस घाना कोस्ट में ज्वाइंट हो सकता है, ठीक है? ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये बहुत ही अच्छे से यूरोप के साथ में मिक्सअप हो सकता है,
ऐसा फील होता है, और ये फील किया है कई रिसर्चर्स ने, और बहुत ही लंबे एग्जामिनेशन के बाद में उन्होंने कुछ चीजें यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश की हैं. So no wonder many scientists thought of this similarity and considered the possibility of the two Americas, Europe and Africa. And according to them, these entire landmasses joined together in the ancient times. And to be once from the known records of the history of science, it was Abraham Ortelis, a Dutch map maker, who first proposed such a possibility as early as 1596. और इस बात को 1596 में ही अब्राहम ऑर्टेलियस ने अपनी तरफ से ये प्रूफ करने की कोशिश की थी. ये एक डच मैप मेकर थे. इन्होंने इन मैप्स को आपस में कनेक्ट करके कोशिश की थी बताने की कि ये जो लैंड मासेस हैं, ये जो कॉन्टिनेंट्स थे, ये पहले अर्लियर टाइम में आपस में ज्वाइंट थे. पर उस समय इनकी बातों को बहुत ज्यादा नहीं माना गया था. But it was Alfred Wegener, a German meteorologist, who put forth a comprehensive argument in the form of continental drift theory. लेकिन आगे चल करके एक जर्मन जियोग्राफर थे, एक जर्मन मीटरोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर. इन्होंने आर्ग्यूमेंट रखा इस बात पर और अपनी एक थ्योरी बनाई जिसको नाम दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और इस थ्योरी को प्रपोज किया था 1912 में. एंड अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर, This was regarding the distribution of oceans and continents. ये थ्योरी किससे रिलेट करती थी? ओशियन और कॉन्टिनेंट से. And what Alfred Wegener said? According to Wegener, all the continents form the single continental mass. Wegener के अकॉर्डिंग सारे कॉन्टिनेंट्स एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास पर थे and mega oceans surrounded the same continental landmass. So the supercontinent was named Pangaea, which meant all Earth, and the mega ocean was called Panthalassa, meaning all water. इन्होंने अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया कि सारे लैंड मासेस एक जगह पे थे और इस सुपर लैंड मास को पेंजिया बोला इन्होंने, और उसके चारों तरफ से कवर्ड जो मेगा ओशियंस थे उनको इन्होंने नाम दिया पेंथालासा. ये जर्मन वर्ड्स है और पेंजिया का जर्मन में वर्ड मतलब होता है ऑल अर्थ, लैंड एरिया, और पेंथालासा का मतलब होता है वाटर बॉडी. Later he argued that around 200 million years ago, the supercontinent Pangaea began to split, and Pangaea firstly broke into two large continental masses, and these large continental masses called Laurasia, the northern part, and the Gondwana land, the southern part. So Laurasia and Gondwana continued to break into various smaller continents that exist today. आज अगर हम देखें तो दो पार्ट में नहीं है ये कॉन्टिनेंट और ये ओशियंस, इनमें और भी ज्यादा चेंजेस आए और ये और ज्यादा ब्रेक होते गए और आज का जो वर्ल्ड मैप है वो तैयार हुआ. तो वेराइटी ऑफ एविडेंस वाज ऑफर्ड इन सपोर्ट टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. और ऐसा नहीं था कि इन्होंने ऐसे हवा में बात कही थी, इन्होंने अपनी थ्योरी को प्रूफ दिया था, कुछ एविडेंस सामने रखे थे. चलिए एग्जामिन करते हैं इन एविडेंस को. So the evidence in support of continental drift theory are: the first evidence is the matching of continents according to Jigsaw fit. Students, आपने बचपन में जिक्सॉ पजल तो बहुत खेला होगा, जिसमें हम लोग डिफरेंट तरीके के शेप्स को लेते हैं, उनको ज्वाइंट करते हैं और एक पिक्चर या एक इमेज क्रिएट करते हैं. सिमिलरली ऐसे ही अगर हम लोग अपने इस वर्ल्ड को अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को कट करें, इनके शेप्स को, और फिर इनको आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो ये वास्तव में बहुत अच्छे से मैच हो सकते हैं, बिल्कुल जिक्सॉ फिट की तरह. और इवन इस बात को प्रूफ भी किया गया है 1964 में. एक अटलांटिक मार्जिन वाज प्रेजेंटेड बाय बुलार्ड. बुलार्ड एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अटलांटिक मार्जिन को प्रेजेंट किया है. इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए जो मार्जिन्स हैं अटलांटिक के, इन दोनों को आपस में जोड़ करके दिखाया है. एंड इट प्रूव टू बी क्वाइट परफेक्ट. बहुत ही अच्छे से ये ज्वाइन भी हुआ है. सो द मैच वाज ट्राइड एट 1000 fathom line.
instead of the present shoreline. Now the second proof, rocks of same age across the ocean. The radiometric dating methods developed in the recent period have facilitated correlating the rock formation from different continents across the vast ocean. स्टूडेंट्स, आजकल हम लोगों ने साइंटिफिकली इतना डेवलपमेंट कर लिया है, इतने सारे नए टेक्निक्स को डेवलप कर लिया है कि अब हम लोग बहुत सारी चीजें इजीली पता लगा लेते हैं। और ऐसी ही एक टेक्निक है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। इस मेथड से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि किस रॉक का फॉर्मेशन कौन से समय में हुआ है। और अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स ऑफ 2000 मिलियन ईयर्स अगो from Brazil coast matches with those from the Western Africa। और इसी मेथड से ब्राजील कोस्ट पे पाया जाने वाला 2000 मिलियन ईयर्स पहले का एंशिएंट रॉक, इसका मैच किससे हुआ? वेस्टर्न अफ्रीका के रॉक से। इसका भी फॉर्मेशन 2000 मिलियन ईयर्स पहले हुआ। तो इट मींस द अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट अलोंग द कोस्टलाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका आर ऑफ द जुरासिक एज। डेट भी बताया गया है कि ये जो मरीन डिपॉजिट हैं ये आज के नहीं है, जुरासिक एज के हैं। एंड दिस सजेस्ट दैट द ओशन डिड नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू दैट टाइम। और इस बात का ये भी है प्रमाण कि ये जो अटलांटिक ओशियन है तब इसका फॉर्मेशन यहाँ नहीं था। और ये प्रूफ होता है कि ये दोनों एरियाज जो थे, ये जो दोनों कॉन्टिनेंटल एरियाज हैं, ये आपस में ज्वाइंट थे। Now let's move to the tellite. This is the third evidence which proves the continental drift theory. It is a sedimentary rock formed out of deposit of glacier. Tellite एक sedimentary rock है जो कि glacier deposit से तैयार होती है। The Gondwana system of sediments from India is known to have its counterpart in 6 different land masses. Gondwana system जो है इसके sediments 6 डिफरेंट लैंड मासेस में देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक तो हमारा इंडिया है और जो 5 है वो है अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। और बहुत ही स्ट्रेंज बात ये है कि ये टिलाइट जो कि सेडिमेंट्री रॉक है, ग्लेशियर डिपॉजिट है, ये इन 6 के 6 लैंड मासेस पर मिलता है। यानी कि इसमें कोई तो कोरिलेशन होगा। ये एक एम्बिजियस एविडेंस है पेलियोक्लाइमेटिक चेंज का कि पहले कॉन्टिनेंट पर जो ग्लेशिएटेड वर्क टाइम आया था, जब पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट जो था वो स्नो कवर्ड हो गया था और उसकी वजह से ये टिलाइट सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। ये उसका एग्जाम्पल है आइस एज के समय का। और जब आइस एज आई तो सब जगह एक जैसी आई और ये उसी को प्रूव करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज प्लेसर डिपॉजिट। द अकरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन घाना कोस्ट एंड एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक इन द रीजन इज एन अमेजिंग फैक्ट। रिच प्लेसर डिपॉजिट हैं घाना कोस्ट पर, जो कि बाकी जो सोर्सेज हैं इस रीजन के वहां पर ऐसे डिपॉजिट नहीं पाए जाते। एंड द गोल्ड बियरिंग वेन्स आर इन ब्राजील। और रियलिटी में ये जो गोल्ड बियरिंग वेन्स है ये ब्राजील में है। तो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्राजील प्लेटू। तो जो घाना कोस्ट का ये जो गोल्ड डिपॉजिट एरिया है वो कहां से मिला है? ये ब्राजील प्लेटू का हिस्सा था। When the two continents lay side by side, जब ये दोनों कॉन्टिनेंट अगल बगल में थे तो कुछ हिस्सा जो है जब ये सेपरेट हुए तो वो घाना कोस्ट की तरफ चला गया, वरना इसका मेन सोर्स कहाँ है? ब्राजील प्लेटू में। यहां पर भी एक सिमिलैरिटी इस बात को प्रूव करती है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। When identical species of plant and animal adapted to living on land or in fresh water are found on either side of marine barriers, a problem arises regarding accounting for such distribution. नॉर्मली क्या होता है, जो प्लांट लाइफ होती है, जो एनिमल लाइफ होती है, ये अपने आप को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं और ये उसी के अकॉर्डिंग ही सर्वाइव करते हैं। और जैसे ही इनका क्लाइमेटिक कंडीशन या एनवायरनमेंट चेंज किया जाता है,
वैसे ही ये ज्यादा सरवाइव नहीं हो पाते, ऐसा ही होता है। तो एक हमने ऑब्जर्वेशन किया है लेमर्स का, विच अकर्स इन इंडिया, मेडागास्कर, अफ्रीका, और ये लेमर्स को देख करके माना जाता है कि लेमुरिया लैंडमास का ही हिस्सा है, और लेमुरिया में तीनों को शामिल किया गया है, इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका। वन मोर एग्जाम्पल, मेसोसोरस, it was a small reptile and it adapted to shallow brackish water. ये shallow brackish water में रह सकता था। So the skeletons of these are found only in 2 localities, और skeletons जो है इसके 2 localities में देखने को मिले, साउदर्न केप प्रोविंस में जो कि अफ्रीका का हिस्सा है, एंड इरेवर फॉर्मेशन जो कि ब्राजील में है। तो अगर ये साउथ अफ्रीका और ये ब्राजील वाला हिस्सा आपस में अगर कनेक्टेड नहीं है, तो फिर इस स्मॉल रेप्टाइल के जो स्केलेटन है ये इन दोनों जगह पे कैसे हैं, जबकि ये दोनों लोकेलिटी जो हैं ये प्रेजेंटली 4800 किलोमीटर दूर हैं, इनके बीच में एक वास्ट ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, फिर भी मेसोसोरस जो है ये इन दोनों जगह पे इसके स्केलेटन मिलना इस बात को प्रूफ करता है कि लैंडमार्क जो है ये सब एक साथ लैंडमार्क कनेक्टेड था, राइट। So this is all about the theory continental drift, and these are some of the evidence which prove this theory. Later, the force for drifting, the post drift studies, we taking these topics in our next video. So students, I hope कि आपको इन एविडेंसेस से पता चला है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहीं ना कहीं सही है। अब इस कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट होने के पीछे के रीजंस क्या कारण है जिनकी वजह से ड्रिफ्ट हुआ, किस वजह से ये कॉन्टिनेंट्स टूटे, इनके एरियाज में, इनके पोजीशन में चेंजेस आए, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग्स वेल। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।